अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 4 नवंबर 2020। टाइम हो रहा है सुबह 5:55 और मैं जा रहा हूँ विनचेस्टर में मौजूद अपने कस्टमर की फैक्ट्री में। और टैक्सी मैंने कॉल कर ली है। कोविड-19 की वजह से नाश्ता होटल के अंदर नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। रात मैंने आपको बताया था मुझे ओनर साहब जो हैं वो ख़ुद लेके गए थे तकरीबन 10 से किलोमीटर दूर मैकडॉनल्ड्स पे। तो नाश्ता हम रास्ते से कहीं से पकड़ेंगे, टिम हॉर्टन्स मुझे नज़र आया था वहीं से पकड़ लेंगे और फिर वहाँ से फैक्ट्री जाएंगे। 7 बजे अपने काम का आगाज़ करेंगे, इंशाल्लाह उसको आज ख़त्म करेंगे और फिर शाम को आएंगे। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Morning. You going to Winchester, you said? Yeah, Winchester. Never heard of it. Okay, I'll give you the Google address. I know where the hospital is, that's all I can tell you. All right. अच्छा तो जनाब मुझे नहीं पता मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं, लेकिन अभी मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ और फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। सुबह के बजे हैं 6 और आपके सामने ये हालात है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो आपसे फिर तब मिलते हैं जब कुछ बाहर नज़र आ रहा होगा। Now I'd like to get a taxi driver up here and put a cab up here, but drivers are so hard to find and Yeah. trustworthy. Yeah. I think it's much busier than Chrysler and all the other Yeah. towns here. Because they have a couple of inns here that I was trying to book, but turns out they're already full. So that's why I had to book the other one, the Cedar Drive one. In 500 meters, turn right. I'm sorry, what? They seem to be pretty popular. Yeah. They do have this factory which employs about 200 people. So In that that's place here? yeah, that's a milk factory, milk and cheese factory.
Yeah. Oh yeah, the cheese factory. Yeah. Yeah. So that is one of the attractions, I guess. Turn right, then you will arrive at your destination. You've arrived. Busy. Somebody put your window down. You got it down. Yeah. Good morning, what can I get for you? Hi, good morning. Can I get a farmer's egg wrap? And a hash brown on the side, and steep tea with 2 creams and 3 sugars. What size? Medium. And that's everything for today. Yeah, thank you. 7:10. Okay, All right. I have an order too. Hello. Oh. Oh well. My loss. अच्छा ले तो जी जनाब, मैं पहुंच गया हूं अपनी फैक्ट्री में नहीं, कस्टमर की फैक्ट्री में, जहां मैंने आना था। ये रहा मेरा नाश्ता, टिम हॉर्टन्स का फार्मर्स एग रैप, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मशवरा दिया था, और ये रही चाय। तो ये मैं नाश्ता करता हूँ। ये मैंने रास्ते में टैक्सी से ही लिया था। टैक्सी वाले साहब बहुत अच्छे थे, ही वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन, और उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया है। और होटल से यहाँ तक पहुँचने का ख़र्चा आया है $63, $63, यानी ऑलमोस्ट 7,000-7,500 रुपये। खैर ये मुझे नहीं पता मैंने क्यों बताया है, लेकिन अब मैं करता हूँ नाश्ता, फिर मैं अपने बंदे को जिससे मैंने कांटेक्ट करना है उससे बात करता हूँ, और फिर मैं अंदर जाता हूँ और फिर काम शुरू करते हैं। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes too. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 5 नवंबर 2020। कल मैं इतने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। एक तो काम बहुत लंबा और टायरिंग था, और दूसरा ये कि दिन काफ़ी मेरा जो है लेट ख़त्म हुआ था, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी, और मेरा गोप्रो भी जो है वो डेड हो गया, तो मैंने थोड़ी बहुत आईफोन पे रिकॉर्डिंग की थी। खैर आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करूँ, तो फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं जब हम नाश्ता करके फैक्ट्री पहुँचते हैं। Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen. Morning, John. Morning. How are you? I'm good. How are you? What happened to the back seat? Where? It's all muddy and dusty. I don't know. It's the door and the everything. Okay, I'll just get that cleaned up when I get back. Yeah. That must have been that drunk lady that I picked up last night. She must have fell. Okay. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I
always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. So out of all of these towns like St. Albert and Castleman and Chrysler, Winchester has to be the biggest one, right? Castleman's pretty close. Okay. Because Castleman's got everything there. They've got the Tim Hortons. Yeah. They've yeah. got McDonald's. They got A&W. They have Harvey's. Yeah. What else? The Burger King, Kentucky. Yeah, I saw all those because my B&B owner, the first night when I came here, he was like, "You're not gonna find any food, so let me hop on and let me take you to the nearest McDonald's or wherever you want to go." So he took me to Castleman. Yeah. And then I saw all these. They're in pretty close proximity as well. Yeah. So that's why I was like, Castleman seems pretty close to Winchester, but I'm not sure. Yeah, it's not that bad. Oh. But they have bed and breakfast in Emblem too. Okay. All right. There's 1, 2 that I know of. Okay. Originally, I was looking at a bed and breakfast in Winchester, very close to the factory. In fact, walking distance, like 200 meters. But I called them up and they were like, "No, we're fully booked." So that's why I then had to go to the closest option that was in Chrysler. Hi, good morning. Can I get a farmer's egg wrap? In fact, make that 2 farmer's egg wrap and a hash brown on the side. And 1 jalapeno bagel with the cheese. Yeah. And finally, one tea. 1 steep tea, medium size, and 2 sugars. 2 creams and 3 sugars. Anything else for today? No, thank you. John, do you want anything? Oh, no, thanks. All right.
Yeah, that'll be all. ओके तो जी जनाब, मैं आ गया हूँ अपनी फैक्ट्री में और कोरोना वायरस के सवालात के जवाब देने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो अब मैं जो हूँ ये नाश्ता कर रहा हूँ अपना, और नाश्ता करके इंशाल्लाह 8 बजे मैं अंदर जाऊँगा और जाके तो फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब हम काम कंप्लीट कर चुके होंगे या कुछ सब्सटेंशियल काम हो चुका होगा। ओके तो जी आज दिन के टाइम में मेरी टैक्सी आ गई है। अब बैठते हैं और वापस होटल जाते हैं, फिर आपको कुछ क्राइसलर दिखाते हैं। Hey John, hey, how's it going? The machine works fine today, eh? Yeah, I think it was my machine. It's fixed now. We charged Thank it you. when we got home. It wasn't dead. No, but Sometimes it's depending on the weather, eh? Yeah. Okay, Alright, so 9 so, o'clock tomorrow morning? Yeah, tomorrow morning at 9. Okay. Thank you so much. And can you please open the boot? I did. Okay. You have yourself a nice trip back? Yeah, thank you. Alright guys, thank you. See you, bye bye.
ओके जनाब, तो फाइनली थके हारे हम वापस आ गए हैं और अब जो है आज चूँकि थोड़ी सी लाइट अभी बाकी है, भी 1-1.5 घंटा है। आजकल यहाँ पे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है टोरंटो में 6:30 बजे होता था, हालांकि टाइम जोन सेम है, यहाँ का और टोरंटो का टाइम सेम है क्योंकि ओंटारियो में है दोनों। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे 6:30 होता था। पता नहीं, शायद मुझे लगता है, मैं जाके जब दोबारा देखूँगा तो फिर इस पर मैं आपको कंफर्म करूँगा। खैर, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, फिर निकलते हैं बाहर और थोड़ा सा ये शहर नहीं गाँव देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जनाब, मैं अपनी तरफ से जो है, आपने शायद ये हाइपरलैप्स जो मैंने डाला होगा वीडियो के अंदर वो देख लिया हो। मैं अपनी तरफ से वीडियो बना रहा था और मैं बोल रहा हूँ और तकरीर कर रहा हूँ और सारा कुछ दिखा रहा हूँ और अपने व्यूज़ बता रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। अभी मैंने देखा कि टाइम क्यों 1 मिनट गुजरा है अभी सिर्फ, मैं तो पिछले 15 मिनट से बातें कर रहा हूँ। तो मुझे पता लगा कि GoPro की मैंने उठाते करते उसकी सेटिंग ख़राब कर दी थी और वो हाइपरलैप्स पे चला गया था बजाय कि वीडियो बनाने के। तो काफ़ी सारा कुछ मिस हो गया। मिस तो नहीं, वो आपको नज़र तो आ जाएगा, लेकिन वो जो मैं बकवास कर रहा था वो नहीं आपको मिलेगी। तो और वो हाइपरलैप्स और तरह से वो तस्वीरें ले रहा होता है। तो खैर, मैं बता ये रहा था कि काफ़ी पुरसकून इलाका है और मैं निकल के एक साइड रोड पे सुकून से चलता जा रहा हूँ और यहाँ पे हर नज़ारा ऐसे ही है कि उसको आप इंस्टाग्राम पे डाल दें। हर चीज़ को देख के यही लगता है, दिल करता है कि यहाँ फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, हर चीज़ की फ़ोटो ले लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करते करते मैं अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं फिर उस स्टेज पे आ जाता हूँ कि मैं रियल में नज़ारा नहीं इंजॉय कर रहा होता और मैं कैमरों के ऊपर और फ़ोटोग्राफ़ी और बस ये कि तस्वीर में ले लूँ और अच्छी तस्वीर आ जाए या अच्छी वीडियो आ जाए, उस चक्कर में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ये शायद एक, जहाँ टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं वहाँ उसका एक ये नुकसान भी है। मुझे लगता है कि हम समटाइम्स, एटलीस्ट मैं, फिर उसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ बजाय इसके कि एक्चुअल में उस नज़ारे को एंजॉय कर सकूँ। तो मैंने कुछ अरसे से कोशिश की है, ऑल्दो के जो यूट्यूब यहाँ उसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो फिर मुझे उसको चैनल पे डालने के लिए ज़रूर बनाना पड़ता, फिर तो अदरवाइज़ कुछ भी ना हो। लेकिन फिर भी मैं फ़ील करता हूँ कि मुझे चाहिए कि मैं बस ये कैमरे और फ़ोन रख के सुकून से उसको एंजॉय करूँ। आप देखें कितनी पुरसकून सड़क है, यानी, और यहाँ पे सारी सहूलतें, यहाँ पे जितने भी घर हैं, अभी पीछे काफ़ी सारे घर गुजरे हैं, बड़े बड़े अच्छे पुरआसाइश घर बाहर से देखने में, ऑफ कोर्स अंदर से भी होंगे। तो ये चूँकि एक छोटा गांव टाइप कस्बा है और ऑटोवा जो कि कनाडा का कैपिटल है वो यहाँ से तकरीबन 35-40 मिनट की दूर है। तो अगर आपने सिटी लाइफ एंजॉय करनी है, जिस तरह यहाँ के लोग क्लब्स वगैरह में जाते हैं या उनको आपने अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना है, म्यूज़ियम्स जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, कुछ भी करना है, जो भी बड़े शहर की सहूलतें हैं, तो वो यहाँ से 35-40 मिनट दूर है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हर एक बंदे के पास अपनी गाड़ी होती है, सब कुछ होता है। और जब आपने सुकून करना हो तो आप अपने यहाँ पे घर में आएँ। और ये अब खूबसूरत लग रहे हैं ये ख़ज़ां वाले पत्ते और ये दरख्तों के हालात चल रहे हैं और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। अब आप ये देख सकते हैं कितना ये अच्छा लग रहा है कि दरख्तों के अंदर एक घर है और उन भाई साहब ने अपना ट्रेलर भी रखा हुआ है, जो कि मोटर होम भी जिसको कहते हैं। मेरे चैनल पे आने वाले काफ़ी सारे लोग, इंडिया का एक व्लॉगर है ट्रैवलिंग देसी के नाम से। तो जब मैं कनाडा आने के लिए वीडियोस देखता था तो उस बंदे का चैनल, ये गुजर जाए फिर बता दो, जब मैं कनाडा आने के लिए वीडियोस देखता था तो उस बंदे का मैं काफ़ी सारा जो है ना
वो चैनल फॉलो करता था। मैं बाकी बात बाद में करता हूँ। देखें सामने फरारी खड़ी है, यहाँ कॉर्वेट है और ये हैलोवीन के लिए उन्होंने पम्पकिन्स लगाए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप में से जो लोग वो चैनल देखते हैं आपको पता होगा कि उसने भी अपने चैनल पे एक मोटर होम लिया हुआ है और वो उस पर कनाडा घूम रहा है अपनी अम्मी के साथ। तो वो बंदा मुझे अच्छा लगता है, उसका स्टाइल अच्छा है व्लॉगिंग का और वो अच्छा कंटेंट बनाता है, मज़ा आता है उसकी वीडियोस देखने का। और जब आप नहीं होते, जिस तरह आप लोग मेरी वीडियोस कुछ लोग जो देखते हैं जो, तो एक ऐसे लगता है कि चलो हम अभी वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। और एक पॉइंट आता है आपको फील होता है कि हाँ यार हमने भी उसके साथ साथ कुछ ना कुछ देखा है। और मैं कोशिश भी इसलिए करता हूँ, मेरा व्लॉगिंग तो नहीं, मैं जो भी करता हूँ मैं इसको बड़ा कैजुअल रखता हूँ। मेरा बोलने का अंदाज़, मैं बहुत सारी अंग्रेज़ी नहीं झाड़ता, तो शायद कुछ लोग समझते हैं। मुझे एक दो कमेंट्स आए थे कि भाई आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, मैंने कहा नहीं जी नहीं आती। तो वो तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन मैं बहुत सारी वो अंग्रेज़ी नहीं झाड़ता। सादगी सही रहती है, कोई फैंसी बनने से कोई अवार्ड तो मिल नहीं जाना, क्या होगा। तो सादा रहे बंदा, बाकी आपका काम अच्छा होना चाहिए, आप ख़ुद अच्छे होने चाहिए। लेकिन व्लॉगिंग में बहुत सारा कुछ ऐसे दिखा के कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बस हर एक का खैर अपना अंदाज़ होता है। तो बहरहाल हम वापस अपने शहर की तरफ चलते हैं, जो हम वॉक कर रहे हैं। तकरीबन मैं 1-1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी भी चल रहा हूँ। बस मुझे इतना है कि मैं सनलाइट ख़त्म होने से पहले वापस मुड़ जाऊँ, तो बस अभी अगले 1-2 मिनट तक वापस मुड़ जाऊँगा। मुझे कुछ विंड मिल्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्दो कि काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी देखी होंगी, बट मुझे विंड मिल्स अच्छी इस तरह से लगती हैं कि इंसान हवा को, पानी को यूज़ करके अपने मतलब की सारी चीज़ें कर लेता है। और दूसरी मज़े की बात कि जिस BNB में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे एक इंजीनियर और रुका हुआ है जो कि बेसिकली इन विंड मिल्स को इंस्टॉल करने के प्रोजेक्ट पे है। तो यहाँ पे तकरीबन 29 लगनी है और मुझे इस वक्त मेरे व्यू में 1 2 3 4 5 6 मुझे नज़र आ रही हैं और 23 और हैं। इसके अलावा वो भी लगी हुई हैं आगे रास्ते में, आपको शायद मैंने दिखाई भी हों वापसी के रास्ते पे जब मैं टैक्सी पे आ रहा था। तो विंड मिल्स यहाँ पे लग रही हैं। और मैंने जब वो हाइपर लैप्स वाला मसला हुआ था तो मैंने असल में वो सारा दिखाया था कि मैं जिस एयरबीएनबी में रुका हुआ हूँ वो क्या है, कैसे है। तो लेकिन खैर अब वो जब मैं वापस जाऊँगा तो अंधेरा हो चुका होगा, तो बस आपको वो हाइपर लैप्स में थोड़ा बहुत नज़र आएगा। मुझे नहीं पता मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी तरफ चेहरा करके आपको बातें कर रहा था, तो बातें तो आएंगी नहीं हाइपर लैप्स में। तो अब पता नहीं उसका क्या बनेगा। अब ये देखेंगे कितना खूबसूरत घर है कि ना साइड पे कुछ भी नहीं है, ना पीछे ना साइड पे ना इधर उधर, और दरमियान में एक घर है और बस सुकून है। ये तो कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन बड़ा पुरसुकून है। तो मैं मेरा ख्याल है यहाँ से वापसी करता हूँ ताकि मैं सनलाइट ख़त्म होने से पहले वापस पहुँच जाऊँ। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, मुझे नहीं पता ये विंड मिल्स के लिए है या यहाँ कुछ और बन रहा है। तो बस अब वापस चलते हैं। कैमरा मेरा ख्याल है बंद हो जाएगा कुछ ही लम्हों में। तो बहरहाल खैर रास्ता बाकी आपने देख ही लिया है, तो इससे पहले कि कैमरा मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए मैं ये वीडियो क्लिप एंड करता हूँ। अभी मैं जाऊँगा वापस, खाएंगे कुछ खाना। मैं सुबह मैंने जब टिम हॉर्टन से नाश्ता लिया था तो मैंने एक एक्स्ट्रा बेगल और हैश ब्राउन ले ली थी, और बस मैं वही खाऊँगा क्योंकि फिर वो आपको पता है हलाल का मसला होता है। तो वो खाएँगे, नहाए धोएंगे, सुकून करेंगे थोड़ा सा। कुछ रिपोर्ट वगैरह मैंने बनानी होती है वो मैं करूँगा। उसके बाद सुबह इंशाल्लाह 9 बजे जो जॉन, जो कि बंदा मुझे टैक्सी पे कल सुबह, कल शाम, आज सुबह और आज शाम लेके आया गया है फैक्ट्री, उसका एक जानने वाला है जो मुझे टैक्सी पे टोरंटो ले जाएगा, क्योंकि आते हुए मेरे साथ हुआ था हाथ। हाँ वो मैं सुना देता हूँ, वो मैंने आपको बात बतानी थी। तो मैंने जो टैक्सी बुक की थी वो मैंने आपको कहा था कि अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितनी महंगी हो सकती है।
तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी टैक्सी थी। वो टैक्सी हुई थी $801.5 की, फ़िक्स रेट था, मीटर पे नहीं थी। मीटर पे होती मैंने गलती की है। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि हमेशा मीटर टैक्सी करें, वो मोस्ट केसेस में सस्ती ही पड़ती है। तो अगर मैं मीटर टैक्सी, अब जॉन ने मुझे बताया कि कल जो वो बंदा जिसका उसने मुझे बोला है जो मुझे लेके जाएगा वो मीटर पे जाएगा, और उसने मुझे कहा कि $500 तुम समझ लो यहाँ से टोरंटो के लगेंगे, जबकि आते हुए मुझे $800 लगे, क्योंकि उन्होंने फ़िक्स्ड कराया रखा हुआ था। और जो टैक्सी वाले साहब थे, उस बंदे ने मुझे लूटने की कोशिश इस तरह की कि मैंने उनको, टैक्सी वाली खातून जो भी जिसने फ़ोन उठाया था, डिस्पैचर जो होती है, उसको बोला था कि मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा और कैश मैं नहीं रखता। तो टैक्सी वाले ने मुझे कहा कि भाई मुझे फ्यूल डलवाना है तो तुम थोड़ा सा कैश निकलवा लो। मैंने कैश निकलवाया, $50 मैंने निकाल के उसको दे दिए। अब 800 में से 50 निकाल दे, 750 मुझे उसको कार्ड पे चार्ज करने चाहिए थे। वो कार्ड पे भी मुझसे 800 ले रहा था। तो मैंने कहा 1 मिनट भाई, ये तो तुमने $50 ले लिए हैं, तो मैं तुम्हें क्यों 850 क्यों ले रहे हो। उसने वो चेंज की और 750 की बना दी रसीद। वो पेमेंट मशीन रखी हुई थी उसने गाड़ी में। फिर मैंने उसको कहा रसीद तो तुम मुझे 800 की ही दोगे। तो कहता नहीं, मैं रसीद तो मैं 750 की दूंगा। मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, तुम पैसे मुझसे 800 ले रहे हो, दे तुम मुझे 750 की रसीद रहे हो, ये कौन सा तरीका है। फिर चुप कर गया। फिर मैंने उससे पैसे अपने वापस लिए और फिर उसने कार्ड पे ही 800 चार्ज किए। तो वही बात है, मैं जब वो हाइपर लैब्स बन रहा था तो मैं बात ये कर रहा था कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कनाडा क्या एक सेफ़ कंट्री है। तो जी सेफ़ है, लेकिन कॉमन सेंस हर जगह ज़रूरी होती है, चाहे आप दुनिया के सेफ़ेस्ट तरीन कंट्री में हों या फिर आप बहुत ख़तरनाक मुल्क में हों। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें, ये देखें कितनी खूबसूरत जगह। और वो सामने एक जंगली जानवर है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये अल्पैका इसको बोलते हैं। आई डोंट नो कैमरा पिक कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन ये अल्पैका एक जानवर है जो कि हिरन की तरह का होता है, लेकिन इसकी गर्दन लंबी होती है। तो मुझे तो ब्लैक और वाइट नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में वो नज़र आ रहे होंगे या नहीं, क्योंकि लाइट भी कम है और इसमें जूम भी नहीं होता। बल्कि जूम से याद आया कि मैं क्यों ना फ़ोन से इसको कैप्चर करने की कोशिश करूं। अगर ये हो जाए तो देखते हैं। तो ये जी अल्पैकास हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम पे डाल सकूँ। खैर, तो ये वो पत्ते शत्ते आ गए।